Thank you so much, Dr. Amin, for having us on show. ये चाहता रोल रिवर्सल. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Nobody Told Me That with Dr. Imran Khan Jadoon. I would like to start this series of podcasts with the saying of Imam Shafi that says, knowledge is not what memorized, knowledge is what benefits. ये एक छोटी सी effort है from my side to share whatever little knowledge that I have with you guys. In today's podcast, I would like to introduce our guest who is a graduate of FMH, Vice President External Affairs, International Federation Medical Students Association, Pakistan. इसके अलावा she is working as a clinical lead at Artificial Intelligence in Healthcare, Sehat Sanja at LUMS. She is also a pioneer in crafting the idea of AI Identify and bringing positive collaborations within the nation. She is a very active member of APDSA Pakistan. She has worked as a ex-liaison officer and a director panel discussion and director lectures in APDSA Pakistan. So let's talk to her. Thank you so much for having me on board. It's an absolute pleasure to be here, and of course, talking about AI is like amazing. It always feels amazing. Artificial intelligence has taken over the world. I've seen multiple softwares, ChatGPT का किसको नहीं पता. That has made life easy also. इसके अलावा ऑटो पायलट सिस्टम आ गया है गाड़ियों में और काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ऑटोमेशन आ गई है होम सिस्टम्स में. सरप्राइज्ड कि अब डेंटिस्ट्री में भी ये चीज़ आ रही है. एंड आई वुड रियली लव टू हेयर अबाउट दैट. उसमें आपने काफ़ी एफर्ट की है और उसी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप इस पे क्या काम कर रही हैं. व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड दिस and how did you introduce this artificial intelligence in dentistry? Okay, so again, बहुत सारे components है question के, but definitely I'll try to break it down and of course explain in a coherent manner. Okay, so artificial intelligence, again, as we say कि it's basically evolving and of course multiple fields में इसकी involvement आ गई है. आप बहुत side पे देख रहे हैं, I mean IT में, tech side में, you know, e-commerce में, it's absolutely prevalent. So of course we need to understand कि ये चीज़ exist करती है and of course we need to consider it as a smart co-worker जिसके basis के ऊपर of course it's going to help you, assist you with every kind of your daily routine, you know. So of course dentistry में we do understand कि it's a skill job, right? It's a hands-on kind of job. So of course we would always love to augment our skills accordingly, and we would always like that if there is like some smart co-worker which is actually helping us in diagnosis and in treatment planning, you know. Actually, I would like to add one thing here. Yeah. She just graduated last year and this is very inspiring that she has done a great job in this 1 year and इतना लंबा जो आपको introduction दिया. So in this 1 year, it's very inspiring for all the young comers. Thank you so much. I think that's absolutely kind of you to actually say that. Of course, I believe that if I can do it, everyone can do it, of course, because we do need to realize that there are a lot of opportunities and we need to think out of box, you know. Sometimes it's always said कि, you know, आपको इस box में देख के आपका जो tunnel vision है ना, आपको उसको थोड़ा सा broad करना चाहिए, because there are opportunities which you need to explore, which you actually can craft something from your own, because ultimately when there is originality, when there is something which is unique, तो वो दुनिया accept करती है, you know. So again, that was the obviously vision, and of course I was like studying, and of course there was a lot of research which was like going, and if I was exploring AI in dentistry softwares which actually prevalently exist in the world, you know. It's not something which is not existent, it is actually very much existent. It's just that it's not in Pakistan. So I of course decided, and of course I was working regarding the AI concepts. I was learning about it because I'm currently working in LUMS, so of course I was exploring that. Normally तो ऐसे ही होता है, sorry to cut you off, लेकिन जब चीज़ 10 साल पुरानी हो जाती है बाहर, तब आती है पाकिस्तान में. So I would really appreciate कि right away अभी इस चीज़ पे बाहर भी काम हो रहा है. It's not that much old. So still we are having this here. So that is very amazing. Yeah, I mean that's so much important that we have the access, right? It's not like कि हमें पता नहीं है चीज़ों का, you know. आप सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है. So it's important that we can actually grasp and learn the things which are available, and we can actually put them into the usage of like the masses, you know, on the people, of course. So that was the idea. I actually wanted to do something for dentistry to make life easier for the dentist.
dentist to help them with their diagnosis and streamlining their treatment processes. So this was basically the idea which I actually wanted to serve. डेंटिस्ट्री को लोग नहीं बॉदर करते, दांतों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, Yeah. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा पेशेंट को होगा या डेंटिस्ट को होगा, इसमें आप क्या समझती हैं कि इसका एक जनरल पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। आई मीन AI को लाने का मकसद यही है कि डेंटिस्ट की लाइफ भी इजी हो जाए और जो पेशेंट की कम्युनिकेशन है, जो हम लोग पेशेंट डॉक्टर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, पेशेंट डेंटिस्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम उसको फीजिबल बनाना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि देयर आर सोर्सेज, ऑफ कोर्स देयर आर सोर्सेज जिसको आप इम्प्लाई करके क्लिनिकली लोगों को पेशेंट को दिखा सकते हैं, ओके दिस इज प्रॉब्लमेटिक, यू हैव क्लियरली इंडिकेशन, आपको यह बताता है लेबल करके कि दिस इज प्रॉब्लमेटिक, दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड, राइट। सो अल्टीमेटली आपको जब सब कुछ विजुअली यू कैन एक्चुअली शो टू द पेशेंट्स, तो फिर आपके लिए चीज़ें उनको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाती हैं। मुझे अपने हाउस जॉब के डेज याद आ रहे हैं जिसमें पेशेंट आप स्टार्ट करते हैं, रूट कैनाल फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, Absolutely. अब एक्सरे मशीन लगी हुई है ग्राउंड फ्लोर पे, आप सेकंड फ्लोर पे हैं बिल्कुल और ऐसे। पेशेंट के मुंह में फाइल्स I think हैं, वो सब आप हमने वो face उठा किया। के पेशेंट को मुंह खुला हुआ है और लेके जा रहे हैं एक्सरे रूम में, तो वो एक बड़ी हेक्टिक और एक काम जो 5 मिनट का होना चाहिए बिल्कुल। वो आधे घंटे में हो रहा होता है। Absolutely, absolutely. तो इस पे भी कोई टाइम और आपकी एफिशिएंसी बेहतर होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक अभी मैंने ये बात कही थी कि इट्स अ स्मार्ट कोवर्कर, राइट। इट इज़ गोइंग टू असिस्ट यू विद लॉट्स ऑफ थिंग। आपकी पेशेंट डाटा कीपिंग, पेशेंट कम्युनिकेशन एंड पेशेंट के इंटायर जो एक्सप्लेन करना था ना उनको कि व्हाट एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं, आप क्या क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वो सब कुछ आप उनको विद इन अ क्लिक बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी प्लान, दिस इज इट लुक्स लाइक। सो अल्टीमेटली जो पेशेंट का विजन है, जब वो देखेंगे ना कि अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे दांत में केरीज है, और वो मतलब मेरे दूसरे दांत को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, जब आप उनको शो करेंगे ऑफ कोर्स विद एनिमेशंस, विद लेबलिंग्स एंड विद ऑब्वियसली सुपरवाइज्ड काइंड लेकिन ऑफ पाकिस्तान में तो जो मैंने देखा है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता उसके साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा है। मोस्टली हॉस्पिटल्स में स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के जो हैं Yeah. और जो काफ़ी क्लिनिक्स भी हैं, मुझे सुनने में आता है जहाँ पे पेशेंट ट्रीटमेंट करा के आते हैं, मेरे पास आए भी हैं पेशेंट्स, उनको नहीं पता उनकी रूट कैनाल राइट भी हुई है लेफ्ट भी हुई है, Yeah. हालांकि साल पहले करवाई है, दे नो नथिंग, yeah. और उनको बताया नहीं गया बेसिकली, Yeah. उनको उनके साथ एक्सरे रिकॉर्ड शेयर नहीं किए गए, उनको पिक्चर्स नहीं दिखाई गई, बेसिकली उनको एजुकेट नहीं किया गया। Absolutely. तो पेशेंट एजुकेशन आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट। Exactly. तो ये मेरे ख्याल से उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल ऐसा है। ऑफ कोर्स अगर हम पेशेंट एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरीके से दे सकती हूँ कि अगर AI आ जाएगा, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, अगर हम इक्विटी ऑफ हेल्थ की बात करते हैं कि अगर एक पेशेंट जिसको बिल्कुल नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है और एक पेशेंट जिसको पता है कि उसके साथ फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, उसको नो हाउ है, तो अल्टीमेटली जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो लोग फिर भी कॉम्प्रीहेंड करके अंडरस्टैंड करते हैं। कोई किसी से सवाल या जवाब नहीं करता बिकॉज उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। वंस यू विल हैव द रिपोर्ट जो कि सिस्टम आपको सॉफ्टवेयर जनरेट करके देगा, दिस इज फॉर यू। सो अल्टीमेटली पेशेंट को नहीं भी पता ना, वो ऑब्वियसली क्वेश्चन कर सकता है, आपको देख के भी पूछ सकता है, दे कैन ऑलवेज क्रॉस चेक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूजुअली जो एक माइंडसेट बनता है वो ये कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा। जिस तरह गाड़ी अगर AI पे चल रही है ऑटो पायलट सिस्टम पे, या एक होम ऑटोमेशन सिस्टम है, या चैट GPT है, यू जस्ट हैव टू एंटर वन कमांड और क्वेश्चन, वो सारा आपको ऑटोमेटिकली आगे से रिप्लाई और पूरी असाइनमेंट आपकी बना के देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डेंटिस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इम्प्लीमेंट होगी? क्या पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट घर बैठे मिल जाएगा? वेरी वैलिड क्वेश्चन। कहीं पे जाते हैं हमसे ये सवाल पूछता है क्या हमारी जॉब्स जाने वाली हैं, दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन आस्क कि मतलब क्या AI इज गोइंग टू रिप्लेस अस, हम रिप्लेस होने वाले हैं? वी नीड टू रियलाइज इट फॉर अ फैक्ट कि विद इन हेल्थ केयर हम इस बारे में बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, बिकॉज डाटा प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी, पेशेंट की जो सर्टन सेंसिटिविटी एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो आपको मेंटेन करनी होती है। सो अल्टीमेटली यू आर द कंट्रोलर ऑफ AI। आई रिपीट दिस एंड आई एम्फसाइज दिस कि आप डेंटिस्ट्री वैसे भी इट्स हाई एंड स्किल Absolutely. जॉब। एग्जैक्टली। और AI based I have seen videos and researches. I recently attended ADEC Yeah. in Dubai और वहाँ पे रोबोट्स थे जो कि सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे। Yeah. They are AI based also. लेकिन आई डोंट नो पेशेंट अपनी रोबोट से सर्जरी कराना पसंद करेंगे या नहीं, और उसमें एरर ऑफ चांसेस कितने हैं, और ये सारी चीज़ें, बिल्कुल ऑल दिस थिंग इज अंडर रिसर्च। या बाकी लेकिन AI
has been introduced in dentistry. Yes, absolutely. Of course, for the diagnosis aspect, अगर हम robots की भी बात करते हैं ना, we have to actually give certain set of rules कि आपने ऐसे काम करना है robot को, you know, bot को भी अगर instructions लेकिन देने हैं, बैक एंड पे डेंटिस्ट का होना जरूरी है. Absolutely, this is completely, मैं हर इसको जितना emphasize करूँ उतना कम हूँ. It's basically a tool. It's a co-worker, smart co-worker, which is going to help you always. It is not going to replace you. We need to understand that the authority lies within the hands of the healthcare professional. एटलीस्ट हमारी जनरेशन तो अपना Of course it's गुजारा कर लेगी. Yeah, but जरूरी ये है कि अडैप्ट फिर भी करना है. हम ये नहीं कह सकते कि सीखना नहीं है, you know. जब इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत पहले आई थी ना, तो लोगों ने यही बातें की थी कि you know, लोग फॉर एग्जांपल इट्स काइंड ऑफ वेरी डेंजरस, लोगों की जानें जा सकती हैं, आप हाथ लगा दे. वो भी एक एरा था. अगर मैं एआई को किसी चीज से कंपेयर करूँ ना, मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले एरा से, जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला एरा, क्योंकि तब लोग डरते थे कि दिस इज समथिंग व्हिच इज यू नो हैजर्डस, इसको हाथ लगाएंगे तो हमारी जान जा सकती है. इसी तरह एआई में हम कहते हैं कि हमारी तो जॉब्स चले जाएंगे. इट्स कंप्लीटली, अभी हम करंटली एआई के स्टोन एज में हैं. Eventually चीजें will improve, but जिंदगी में of course in the coming 5 years I see those dentists to be actually more you know sufficient. Of course skill always is there, but ultimately आपको relatable रहना पड़ता है. If you are not relatable, आप टाइम के साथ अपने आप को नहीं चेंज कर रहे, टाइम के साथ आप चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को नहीं अडेप्ट करें. फॉर एग्जाम्पल रूट कैनाल के भी you know आपको ट्रीटमेंट के डिफरेंट मोडालिटीज गैजेट्स जो मैंने देखे हैं लास्ट 5 इयर्स में इतने इंट्रोड्यूस हो गए हैं डेंटिस्ट्री में. पहले इतने गैजेट्स ही नहीं थे. एग्जैक्टली अब हर चीज की अलग एक इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट सेट ऑफ इक्विपमेंट है, और वो डे बाय डे नई नई कंपनीज की तरफ से उसमें एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं. Exactly. And most of them are AI based. Absolutely, and of course we need to accept that. We and ultimately आपका काम आसान हो रहा है ना. So आपको जिंदगी में और क्या चाहिए कि आपका काम आसान हो. So if there are things, ultimately patient का फायदा है ना. Patient का फायदा है, आपका काम आसान हो रहा है. You know, it is actually improving the standard of care. आपके outcomes बेहतर हो रहे हैं, आपकी efficiency enhance हो रही है. लेकिन इस सारी चीज के साथ एक बहुत important aspect है जो कि cost. Yeah. Cost भी तो add on होगी. It's a very good question. That is why हम लोगों ने you know जब हम लोगों ने collaboration भी की, फिलहाल हम लोगों का जो मॉड्यूल currently function AI Dentify में, that is a collaboration with CranioCatch, which is a Turkish dental AI software. So ultimately you know जब हमने उनसे partnership भी की ना, तो बहुत बाटर किया था हमने. You know it actually took us a while to be on you know. ये बल्कि आप मुझे स्टोरी सुनाएं कैसे आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है आपका AI Dentify कैसे पाकिस्तान में लेकर आई हैं. यू आर द फर्स्ट वन एंड पायनियर. तो ये थोड़ा सा शेयर करें प्लीज. आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की स्टोरी है. डेफिनेटली इसके बहुत एस्पेक्ट्स है इसमें. ये है कि ऑफ कोर्स मैंने जब ये बात डिसाइड कर ली कि अल्टीमेटली AI Dentify विल बी समथिंग, वी विल बी मेकिंग समथिंग फॉर AI इन डेंटिस्ट्री. सो ऑफ कोर्स मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि बहुत सारे यू नो इस वक्त जो AI डेंटल सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, उनके पाकिस्तान में ऑपरेशन फंक्शन नहीं करते. आप ओवरजेट की बात कर लें, पर्ल की बात करें, और भी मल्टीपल जितने एग्जिस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा. मैं आपको यू नो 15 की एग्जांपल दे सकती हूँ. कोई भी पाकिस्तान में फंक्शन नहीं कर सकता. CranioCatch को जब हम लोगों ने यू नो फिगर आउट किया, ऑफ कोर्स आई डू रियली वांट टू ऑफ कोर्स मेंशन दैट CranioCatch को यू नो यहाँ तक लाने में ऑफ कोर्स देयर वर पीपल हु वर एक्चुअली रियली यू नो अपफ्रंट, जिन्होंने इसके होमवर्क में, आई मीन डॉक्टर अहमद वाज देयर एंड ऑफ कोर्स एवरीवन इन द टीम हु वाज एक्चुअली सपोर्टिव कि इसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए. यू नो वी एक्चुअली कम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स जिनको हमने एक्सप्लोर किया. हम लोगों ने उनसे डेमोज लिए एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि ओके फाइन, सो दिस CranioCatch टर्किश बेस्ड है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, सब कुछ आपके सारे रेडियोग्राफ्स के एनालिसिस करता है, तो इनसे बात करते हैं. नो समझ आई, नो हमें लगा कि हम इनसे बात कर सकते हैं. पाकिस्तान में काम करने को वो तैयार थे. उनसे नेगोशिएशंस किए बहुत सारी. उनके साथ हमारा एक डेमो, एक मीटिंग हुई, यू नो टीम की एक इंटरनल मीटिंग हुई, जिसमें एसेंशली सिर्फ हम 4-5 लोग थे, क्योंकि टीम जो है एसेंशली आफ्टर दैट हैपेंड, तो फिर हम लोगों ने टीम को क्राफ्ट किया. यू नो सो इट हैपेंड लाइक दैट. सो अल्टीमेटली फिर हम लोगों को एक जो मेन कंसर्न था ना, दैट वाज द कॉस्ट. एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट इज समथिंग जो कि यू नो फॉर द पाकिस्तानी मार्केट वी डू रियलाइज कि वो वाली चीज़ थी जिसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा यू नो बार्टर किया. प्रॉब्ली एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि दिस वोंट वर्क, यू नो दिस द डेड एंड, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉस्ट उन्होंने हमें प्रपोज की, तो हमें लग रहा था ये तो यहाँ नहीं चल सकती. मैंने उनको जेन्युइनली यही कहा ईमेल करके अपनी तरफ से कि ओके फाइन, यू आर बीइंग लाइक वेरी वेरी काइंड, ऑफ कोर्स यू बीइंग very I mean they're amazing people, by the way. I just want to actually give them this credit. They've been extremely patient with us, extremely polite and extremely open to collaboration. मैंने उनको अपनी of course explain किया कि पाकिस्तानी मार्केट is completely different. हमें पहले पाकिस्तानी मार्केट को we actually need to sensitize कि अच्छा ये चीज़ आ गई है, अल्टीमेटली इसलिए काम करना है. तो एक तो पहले ये कॉम्पोनेंट है, दूसरा of course फाइनेंशियल एस्पेक्ट है. सो उन्होंने बहुत बार्टर करने के बाद जो हमने उनको प्राइस प्रपोज की, हमें लग रहा था कि वो नहीं मानेंगे, बट वो मान गए. Luckily, alhamdulillah, इसमें I would definitely believe कि destiny played the role. I think
Allah Ta'ala has always a plan, so this was meant to be like this, you know. हमें अपने Obviously it was your effort. yeah किसी ना किसी ने तो एफर्ट करनी थी, हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कुछ भी नहीं होता. बिल्कुल ऐसा. सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि हम लोग कितना पॉसिबल इसको यू नो कस्टमाइज कर दें टू आवर मार्केट डायनामिक्स कि वाकई वर्क करे, यू नो कि एक प्राइस रेंज इतनी ज़्यादा यू नो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज ना हो कि वो लोगों को लगे कि ये क्या ही चीज़ है. सो अल्टीमेटली वी हैव एक्चुअली वर्क, और अब हम लोगों ने नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आके कॉमन ग्राउंड्स एक प्राइस ऐसे सेट कर लिया है विच इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ फीजिबल कि लोग उसको यू नो अप्लाई करके टेस्ट करके सेंसिटाइज हो सके. सो अल्टीमेटली वी हैव अमेजिंग ऑफरिंग पैकेज विच वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रिलीज सून, एंड आई थिंक डेफिनेटली आप भी बिल्कुल प्लीज उसको अप्लाई करें. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू एंड यू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. कोई आपसे ये परचेज क्यों करेगा सॉफ्टवेयर, उसको क्या फायदा होगा? परफेक्ट, ग्रेट क्वेश्चन. ओके, सो मैंने पहले भी बात कही थी कि इट्स बेसिकली अ टूल, इट्स अ AI टूल विच इज़ बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू कि ये आपका एक बहुत स्मार्ट फ्रेंड है जो कि आपको यूजुअली बेसिकली डायग्नोस करने में. एग्जैक्टली. अभी करेंटली जो हम लोग यू नो कंपोनेंट लेकर आए हैं वो मोस्टली डायग्नोसिस एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए आपको हेल्प करेगा कि आप बहुत मतलब कोई एक्सरे लेंगे उसको डायग्नोस करने में. बिल्कुल ऐसा ही है. या हम पेशेंट की पिक्चर उतारेंगे वो भी डायग्नोस कर देगा. बिल्कुल ऐसा है. आपने पेशेंट के बेसिकली ये अभी रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन के लिए है. सो इसके अंदर अल्टीमेटली जो चीज़ अभी आप अपलोड करके यू नो एनालिसिस कर सकते हैं वो आप रेडियोग्राफ के बेसिस के ऊपर कर सकते हैं. चाहे आप OPG लगा रहे हैं, पेरिएपिकल कर रहे हैं, बाइटविंग कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, यू विल जस्ट टेक द बेसिकली डेंटिस्ट्री के बाहर मेडिकल साइड पे भी जो एक्सरेज हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है. एब्सोल्युटली. अल्टीमेटली जो हम लोग कौन-कौन से एक्सरेज ये स्कैन कर सकता है अभी ऑब्वियसली बिकॉज क्रेनियोकैट जो है सोली डेंटिस्ट्री के बेसिस के ऊपर, तो यू कैन एक्चुअली सी द पेरिएपिकल का एनालिसिस, बाइटविंग, सेफ, आपका ऑफ कोर्स CBCT. सो अल्टीमेटली आपकी सेफ एनालिसिस भी कर देगा. बिल्कुल ऐसा ही है. इवन सेफ एनालिसिस में आपको जो एनालिसिस है वो बहुत मल्टीपल वैरायटी में करेगा. आपको ट्वीक्स भी करके बता रहा है, जॉर्क्स एनालिसिस भी करके बता रहा है, यू नो. सो आपको मल्टीपल वैरायटी एंड ऑप्शंस भी करके बता रहा है. अपलोड द पिक्चर और सेफ. एब्सोल्युटली. एंड ऑफ कोर्स आपका जो क्वेश्चन था कि ये आपने सिंपल उसको अपलोड किया एंड विद इन द बफरिंग ऑफ लाइक स्पैन ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 5 सेकंड्स नहीं तो आप 1 मिनट कर ले. अगर आप इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं कि आजकल फायरवॉल का थोड़ा मसला चल रहा है ना, तो फिर अगर हम ये बात कर लें तो फिर 1 मिनट ले लें तो आपको एक अच्छा डिटेल एनालिसिस आ जाएगा जिसमें आपके पास बहुत ऑप्शन है, यू नो. इसमें आपने क्रॉस चेक किया कोई मैनुअली सेफ खुद से करके और फिर इसका रिजल्ट आपस में रिलेट करके देखा आपने? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी इस तरह ट्रेनिंग होती है या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ आपके डेटा सेट के ऊपर बनता है जिसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ OPG जो कि पहले से मार्क किया जाता है कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, उसके बेसिस के ऊपर होता है. तो आप बात कर रहे थे कितना रिलायबल R&D डेटा इसका एब्सोल्युटली बिकॉज अगेन प्रॉपर्ली अवेलेबल है. बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि इट इज एक्चुअली टर्की में तो ऑब्वियसली उनके डेंटल इंस्टीट्यूशंस में डिप्लॉयड है, उनके गवर्नमेंट के इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, यू नो, उनके इवन गवर्नमेंट सेटिंग्स में इट्स डिप्लॉयड. सो अल्टीमेटली इसकी एक्यूरेसी की आप बात कर रहे थे, इट्स मोर देन 90% व्हिच इज अ लॉट, यू नो. बेसिकली ये ज्यादा हेल्पफुल पब्लिक एरियाज में जो कि बड़ी प्रैक्टिस हैं लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स जहां पे लर्निंग फेज में डॉक्टर्स और हर वक्त अवेलेबल नहीं और पूल ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा है. तो उनके लिए आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल कि वो सिंपल अपना एक्सरे जो है पेशेंट का उस पे अपलोड करें और उसको पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान बता दें. बिल्कुल ठीक है. इसके अलावा OPG आपने बताया, लैटरल सेफ बताया, और हम थोड़ा डेंटल से बाहर आ जाएं तो और कोई मेडिकल साइड पे भी ऑप्शंस हैं एक्सरेज की लाइक MRI CT स्कैन. अच्छा, इसमें बिकॉज ये सोली डेंटिस्ट्री का सॉफ्टवेयर है तो इसमें अभी MRI और CT स्कैन की ऑप्शन नहीं है, बट अल्टीमेटली बिकॉज डेंटिस्ट्री, लेकिन डेंटिस्ट्री में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर यूज होता है 3D CBCT स्कैन. तो CBCT स्कैन की इम्प्लीमेंटेशन है इसमें? ओके, CBCT इट एग्जिस्ट. अगर मैंने कहा कि आप उसके अंदर करके उसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, इट डेफिनेटली एग्जिस्ट. अभी सॉफ्टवेयर के अंदर करंटली वो बीटा फेज में है. आपका एनालिसिस उसके अंदर वो डेफिनेटली आपको करके देता है एंड इट एक्चुअली एग्जिस्ट. एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने उसको टेस्ट किया. क्या उसमें इम्प्लांट प्लानिंग, नर्व मैपिंग, ये सारी चीजें हो सकती हैं? एब्सोल्युटली इट एक्चुअली एग्जिस्ट. ऑफ कोर्स, या आई मीन that's a smart co-worker for you, right? It's going to help you with every kind of planning, with every kind of यहाँ पे एक बंदे की जॉब मिस आउट हो जाएगी क्योंकि अभी यहाँ पूरे पाकिस्तान आई गेस लाहौर में तो एक ही है जो कि सारी प्लानिंग कर रहे हैं. तो इसका इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जिस तरह हम बात करेंगे एक जॉब चली जाएगी, एक और इंटरेस्टिंग जॉब भी आ जाएगी जो कि डेंटल एनोटेटर्स की जॉब होगी, यू नो, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सॉफ्टवेयर को ट्रेन करना है तो आपको डेटा सेट के ऊपर ट्रेन करना है. सो उसके लिए जो डेंटल एनोटेशनिस्ट होंगे वो उनको बताएंगे कि अच्छा दिस इज समथिंग. OPG में बताएंगे कि ये पेरिएपिकल फॉर एग्जांपल लीजन्स का बताएंगे, एनाटॉमिकल पैथोलॉजिकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई करके बताएंगे. तो डेंटल एनोटेशनिस्ट जो लोग बेसिकली रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो इसको यूज कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. और अगर एक टाइम पे अगर वो 1 घंटे में 10 रिपोर्ट
रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो इसके साथ वो 20-30 रिपोर्ट्स बिल्कुल, बना सकते हैं, तो बिल्कुल टाइम ऐसा ही है। सेविंग है उनके लिए। बहुत ज़्यादा। और अगर हम बात करें डेंटल एनोटेटर्स की जॉब्स, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि बात इंटरनेशनली बहुत सारे वेंचर्स के साथ डेंटल एनोटेशन की जॉब कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट जब हम अपने एंड पे पाकिस्तान में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी डेफिनेटली लोगों के लिए लेकर आएगा। डेंटिस्ट के लिए एज द जॉब ऑफ डेंटल एनोटेटर्स, एज द जॉब ऑफ ऑब्वियसली एनोटेशनिस्ट, सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ पाथवेज। सो अल्टीमेटली आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है, इट विल एग्जिस्ट, यू विल बी एबल टू की काफ़ी मोबाइल ऐप्स भी आ चुकी हैं, मैंने Yeah. देखे हैं, अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह उसको पिक्चर लेते हैं और वो स्कैन होके डाटा आ जाता है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आई थिंक इट्स नॉट दैट मच रिलायबल। तो इसका डाटा कितना रिलायबल है, व्हाट डू यू थिंक? ओके सो AI में अल्टीमेटली AI में जो होती है ट्रेनिंग, उसके अंदर ये होती है कि मैंने अभी कहा कि एक इंसान एक डेंटिस्ट ज़िंदगी में कितने ही सेफ देख लेगा। AI के अंदर जो डेटा सेट या सेफ की ट्रेनिंग होती है वो थाउजेंड्स ऑफ सेफ के ऊपर होती है अल्टीमेटली। तो क्या पता क्या पता नहीं, ये यकीनन है, रिसर्च ने बात प्रूफ किया है कि AI इतना कंपैटिबल है कि वो आपके जैसा एनालिसिस आपको करेगा या आपसे बहुत अच्छा जो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया ना वो भी आपको बताएगा, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है उसकी पैटर्न्स पे ट्रेनिंग है, उसकी ट्रेनिंग है वो वाली चीज़ों के ऊपर जो कि शायद आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। डेंटिस्ट कितने ही देख लेंगे सेफ ज़िंदगी में, 150, 200, 250, 300, वो थाउजेंड्स में ट्रेनिंग है उसकी। सो अल्टीमेटली इट्स समथिंग जो कि इट्स एक्सट्रीमली एक्यूरेट एंड ऑफ कोर्स आपकी एक्यूरेसी इन्हांस होती रहती है जिस तरह आप डेटा सेट की ट्रेनिंग मतलब उसकी जो ट्रेनिंग है डेफिनेटली इंक्रीज करते जाएंगे। अभी थाउजेंड्स पे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन है आपका सॉफ्टवेयर, कल को 2000 पे होगा तो वो और एक्यूरेट हो जाएगा। करंटली क्रेनियो कैच की एक्यूरेसी इज मोर देन 90%, व्हिच इज अमेजिंग। क्रेनियो कैच और AI आइडेंटिफाई ये दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं? या AI आइडेंटिफाई हमारा प्लेटफॉर्म है, हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेंटिस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर Said being the founder, Dr. Asim is there, of course I am there, of course we have the team, Dr. Ikra is here, Dr. Ahmed is there, everyone around, So ये आपकी बेसिकली टीम है AI आइडेंटिफाई जो कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेंटिस्ट्री को हम लेकर आए हैं। क्रेनियो कैच हमारा एक पार्टनरशिप है टर्किश सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आपने आवाम को सेंसिटाइज भी तो करना है ना। मैं अपनी प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दूं और मार्केट पीपल आर नॉट सेंसिटाइज। सो अल्टीमेटली हम क्रेनियो कैच को यहाँ पर लाकर अल्टीमेटली लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इट एग्जिस्ट, आप इसके ऊपर यूज़ करना स्टार्ट करें, आप बताएं हमें आपका फीडबैक क्या है। ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग जो कि हम लोग टर्किश सॉफ्टवेयर के साथ कोलैबोरेट करके उनको लेकर आए हैं। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। गुड। अच्छा, कॉस्ट का भी आपसे पूछते हैं, लेकिन मुझे पहले बताएं कि व्हाट इज योर टारगेट। मुश्किल सवाल है वैसे लेकिन इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा जितने लोग सुन रहे हैं आपको सिर्फ कॉस्ट के लिए रुके हुए हैं अभी कि आपसे पूछेंगे क्या कॉस्ट आएगी उनको। बहुत एक्साइटिंग प्लान है, आप लोगों को खुशी होगी जान के। पहले मुझे बस ये बताएं कि व्हाट इज योर टारगेट मार्केट एंड व्हाट आर योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अबाउट एक्सपेंडिंग एंड स्केलिंग दिस AI आइडेंटिफाइज रीच। Perfect. For the target market, every practicing dentist right now is of course our target market because AI tool है तो obviously उनका smart coworker है, तो that is our target market. And of course currently हम लोगों को इसको launch किया officially it's been like 1.5 months. We are getting a very positive response. अच्छा, इसमें students भी use कर सकते हैं जो हाउस जॉब कर रहे हैं या अभी fresh graduates हैं? या सिर्फ क्लिनिक ऑनर्स या प्रैक्टिशनर्स के लिए या इंस्टीट्यूट्स के लिए ये अच्छी ऑप्शन है? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर आप रियलाइज़ करें कि बहुत दफ़ा आपके हाउस ऑफिसर्स या फिर आपके जूनियर्स को आपके सीनियर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको बता दूं कि AI एक टूल है जिसके ऊपर यू कैन एक्चुअली सेल्फ लर्न, सेल्फ डायरेक्ट योर सेल्फ एंड ऑफ कोर्स इन्हांस योर कैपेबिलिटी कि आप डायग्नोसिस अच्छे से करें। फिलिंग करनी है, रूट कनाल करनी है, सिर्फ आप एक एक्सेस में अपलोड करें और आपको आइडिया हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ऑफ कोर्स दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल कि आप आपके HOs इस्तेमाल करें एंड ऑफ कोर्स आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स करें बिकॉज अगेन इट्स अ टूल फॉर यू ना। अब ChatGPT को मैं ये तो नहीं कहती कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स कर सकते हैं, ये इंजीनियर्स के लिए, इट्स फॉर एवरीवन सो अगेन दिस इज अगर मैं ये कह रही हूँ कि हमारी टारगेट मार्केट इज डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट में ऑफ कोर्स आपके HOs भी यूज कर सकते हैं, आपके फाइनल ईयर ऑफ कोर्स उनके लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए इट्स ग्रेट। एंड फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो कि अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि how is it going, and how's the response? जो चीज़ बहुत नहीं होती है ना, तो ultimately we are getting a very good response, अल्हम्दुलिल्लाह। So normally तो यहाँ लोग change को accept नहीं करते फौरन। I think probably जो अभी हम लोगों के साथ जितने volunteers हैं, they are actually very passionate because of the fact जब जो चीज़ नहीं होती है ना उसकी मार्केट में हाइप होती है, तो people genuinely wants to explore it, क्योंकि कभी कभार चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं बट बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है, बहुत सारी हिंड्रेंसेस होती है कि people उसको इम्प्लाई नहीं कर पाते, बट अल्टीमेटली नाउ इट्स देयर, वी आर देयर, सो देयर वी हैव करंटली 150
50 above volunteers, which is across the Pakistan. We have volunteer representatives in Karachi, Islamabad, Peshawar, Lahore, widespread, and we are going to start our pitching strategy अगले हफ्ते से, which is actually going, and जो कि हम लोग सबसे पहले डेंटल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं और अगले हफ्ते ही वेडनेसडे को हमने जाना है डेंटल इंस्टीट्यूट में टारगेट पिच करने के लिए. सो वी आर गेटिंग होलसम रिस्पॉन्स, एंड ऑफ कोर्स अभी हमारे पास कोलैबोरेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है. हमारे साथ इस वक्त वॉलंटियर्स में इजिप्ट से लोग हैं, यूके से हैं, यूएसए से हैं, सऊदी अरब में बहुत सारे लोग कोलैबोरेट करके रिसर्च को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा वहाँ के प्रोस्टोडोंटिक्स ने हमें कहा कि वी आर एक्चुअली वर्किंग फॉर इट. हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वी वांट टू कोलैबोरेट. हम लोगों को बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है अक्रॉस नॉट ओनली द नेशन. सिर्फ डेंटिस्ट अक्रॉस द पाकिस्तान नहीं है, इट्स गेटिंग लाइक फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. So this is a very new concept and very helpful for everyone, I guess. Exactly. So again, that is the great aspect कि it's actually blooming. People are accepting it, and especially जो आपके younger lot है ना, they are accepting it. Of course, the vision is such a wholesome and such a insightful vision कि लोगों को वो attract करता है. It's not something कि मैं ऐसे ही कोई बात कर रही हूँ कि अच्छा exist करता है. We have a software हम आपको provide कर रहे हैं. Ultimately longer term plans में हम लोग researches हमारी introduce होने वाली हैं जो कि हम कर रहे हैं. So इसके back end पे is there any team of dentists and qualified people और टेक्नीशियंस हैं या कौन लोग चला रहे हैं इसको? परफेक्ट. अभी हम लोगों की जो इंटायरली जो आइडेंटिफाई का कॉन्सेप्ट है वो सोली डेंटल प्रोफेशनल्स जो है इसको लीड कर रहे हैं. सो वी हैव अमेजिंग पीपल ऑन आवर टीम. अगेन मैंने मेंशन किया कि डॉक्टर सईद इज द फाउंडर, वी हैव डॉक्टर आसिम, ही इज द को-फाउंडर. एंड दीज आर फ्रॉम पाकिस्तान. दीज आर फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान. आपने जैसा मेंशन किया टर्की में और यूएस में, तो वहाँ भी आपके बैक एंड टीम है? या अगेन दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. हम लोगों के क्योंकि टर्किश के साथ इस वक्त कोलैबोरेशन है, तो जितनी हमारी R&D होती है ना, उसके ऊपर अगर हमें कोई बिजनेस कंसल्टेंसी, मार्केट कंसल्टेंसी चाहिए तो हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं. एंड ऑफ कोर्स फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम किस तरीके से चीज़ों को ले सकते हैं, देयर इज ऑलवेज अ डिस्कशन. जैसे मैंने कहा कि हमारे वॉलंटियर्स में इजिप्ट से लोग हैं हमारे पास. दे एंड दोज पीपल आर एक्चुअली डेंटिस्ट वर्किंग फॉर हेल्थ टेक. सो अल्टीमेटली उनके साथ भी हमारी कंसल्टेशन हो रही है बिकॉज वो भी हमारी R&D के ऊपर काम कर रहे हैं. सो वी हैव पीपल अक्रॉस द ग्लोब एंड एक्चुअली प्रोफेशनल्स हु आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस डिप्लॉय इट ऑफ कोर्स. एंड इसमें हम लोग आइडेंटिफाई ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर तो है, बट इसमें हम बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करें. आपका रिसर्च हम लेकर आएंगे. वी आर गोइंग टू डू रिसर्च. रिसर्च से थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्या मतलब है आपके. मतलब अगर आप अपनी प्रैक्टिस में 100 पेशेंट्स का एक्सरे इस पे अपलोड करते हैं और डाटा आप अपलोड करते हैं, तो वो 100 पेशेंट्स की कोई क्लासिफिकेशन आपको एट द एंड ऑफ द मंथ मिल सकती है, या क्या रिसर्च होती है इस पर? परफेक्ट. जो केस बेस्ड स्टडी होती है ना आपकी, हम लोग उसके ऊपर रिलाई करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है ना, हम ये बात आपके लिए आसानी से प्रूफ कर देना चाहते हैं एविडेंस के साथ. हर दफ़ा बात होती है एविडेंस के साथ. सवाल आता है कितना एक्यूरेट है, क्या करेगा AI हमारे लिए, कितना % एक्यूरेट है. हम आपको AI से एक एनालिसिस करा के जितने भी रेडियोग्राफ्स हैं वो करवाएंगे और एक प्रोफाउंड कंसल्टेंट से करवा के देंगे. विल मेक अ कंपैरिजन कहाँ पे स्टैंड करता है. सो दिस लेवल ऑफ रिसर्च विल एक्चुअली इंक्रीज द ट्रस्ट एंड विल एक्चुअली बिल्ड द कॉन्फिडेंस कि अच्छा दिस सॉफ्टवेयर अगर एग्जिस्ट करता है तो कितना कितना ज़्यादा रिलायबल है. सो अल्टीमेटली वो वाला रिसर्च कंपोनेंट है. बहुत सारे और रिसर्च कंपोनेंट्स हैं जो कि करंटली इन पाइपलाइन है. जिस तरीके से वो रिसर्फेस पे आते रहेंगे विल डेफिनेटली रिलीज दैट इन द मार्केट. एंड इसमें ट्रेनिंग कंपोनेंट का बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है. अल्टीमेटली हम पढ़ा भी रहे हैं AI इन डेंटिस्ट्री. वी विल टीच, वी विल कम अप विद द मॉड्यूल्स जिसमें हम उनको ट्रेन करेंगे, उनको पढ़ाएंगे कि इनोवेटिव आइडियाज़ को हम लोग सरफेस पे ला सकें. सो उसके लिए ये वाला कंपोनेंट भी हो रहा है. सो वी आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके लिए हमारी पॉजिटिव कोलैबोरेशंस हैं हेल्थ सर्विस एकेडमी के साथ. वो हमें उनके साथ हमारा MOU इस चीज़ के ऊपर हुआ है कि वी गो फॉर इट बिकॉज दे आर एक्चुअली एक्टिवली वर्किंग फॉर इन हेल्थ केयर. सो अगैन दैट इज समथिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल काइंड ऑफ अ थिंग जो कि ऑब्वियसली आपको इस चीज़ के लिए इट एक्चुअली हेल्प्स यू एंड एक्सलरेट्स यू कि आप इसको ऑगमेंट कर सकें. सो वी वर्किंग फॉर दैट टू. अच्छा, इसमें आप एक्सरे लैब्स होती हैं जो कि डेंटल एक्सरेज कर रही हैं, उनको भी आप ऑन बोर्ड ले सकते हैं कि आप उनको ये सॉफ्टवेयर दें. उनके पास कोई भी पेशेंट जाता है, वो एक्सरे करवाता है, फॉर एग्जांपल OPG या CBCT स्कैन के लिए गया है, और वो उनको एक्सरे के बाद इस सॉफ्टवेयर के थ्रू AI बेस्ड सॉफ्टवेयर जो आपका ये आइडेंटिफाई उसके थ्रू एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान बना के दे दें कि ये आज आपका एक्सरे हुआ है, साथ ही एक रिपोर्ट अटैच कर दें कि इस एक्सरे की बेस पे आपकी ये ट्रीटमेंट होना है. अगेन वही वाली बात है कि डेंटल लैब्स को इंटीग्रेट करने का इट्स इन द पाइपलाइन. दोज आर वन ऑफ आवर टारगेट मार्केट्स कि हम ये चीज़ करेंगे. सिटी वाइज लैब के डेंटल लैब के यूजेज के डायनामिक्स वेरी करते हैं.
अगर हम लोगों ने इस्लामाबाद की मार्केट को एक्सप्लोर किया था, इसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू किया, बैकग्राउंड स्टडी की, तो मैं रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे डेंटल लैब्स बहुत ज़्यादा प्रोपोगेटिव है। यहाँ पर एवरी डेंटिस्ट के उनके अपने कोलैबोरेशंस होते हैं, रेफरल सिस्टम्स होते हैं। सो अल्टीमेटली फॉर एवरी रिस्पेक्टिव सिटी हमारी पिचिंग स्ट्रैटेजी होगी कि हम किस हद तक लैब्स को इंटीग्रेट करेंगे। सो अल्टीमेटली ये गोल डेफिनेटली है, वो हमारी टारगेट मार्केट है, हम उनको डेफिनेटली रीच आउट करेंगे। जो आपका वो वाला क्वेश्चन है कि वो कितना कन्फ्यूज करेगा डेंटिस्ट को, दैट इज़ नॉट समथिंग क्योंकि देखें कोई भी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान या डायग्नोसिस विदाउट सीइंग क्लिनिकल कंडीशन नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसा दिस इज जस्ट अ रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस। एग्जैक्टली। तो सिर्फ रेडियोग्राफिक बेस पे आपने फॉर एग्जांपल डिसीजन ले लिया कि पेरिएपिकल पेरिडोंटाइटिस, तो हो सकता है क्लिनिकली सिचुएशन डिफरेंट हो। बिल्कुल ऐसा ही तो ये डिफरेंस कैसे आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा क्या, इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि एआई के अंदर पेशेंट की जो हमारी इंटरेक्शन है वो वाला कंपोनेंट भी सिग्निफिकेंटली बहुत हेल्पफुल होगा। आप पेशेंट को दिखा के यू कैन ऑलवेज टेल कि ये चाहे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है बट आपको ये एस्पेक्ट is always there. Again, it's a tool. The command is always in your hand. You are the hierarchy. It's like within your hands कि आप चीज़ों को किस तरीके से आगे जो है वो facilitate करेंगे. It's a tool which is going to assist you. I mean just like your phone, So it's a tool, it's a gadget. इसको आप जिस तरीके से use करें for the communication, for the record keeping. So it's always in your hand. You are basically the leader. At the end of the day, you have to relate the results of this software with your own knowledge and experience. It's so much important. It's so much important. कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपकी, फॉर एग्जांपल कोई आरसीटी फेल हो जाती है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि एआई ने मुझे डायग्नोस करके बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि इतना ही अगर आपको अपना ही स्किल बेहतर करना है, आपको अपना विजन बेहतर करना है रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस का, तो व्हाई शुड वी यूज दिस सॉफ्टवेयर? तो आप सिंपल पेरिएपिकल अपनी क्लिनिक पे करके भी तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक वही बात है इंस्टेंसेस की बात क्या है। अल्टीमेटली जितनी उसकी ट्रेनिंग होती जाएगी, क्या पता वो आपसे बेहतर डिसीजन मेकिंग करे और आप कहेंगे वाओ, लाइक इसका अगर ये एस्पेक्ट है तो इसका ये भी तो एस्पेक्ट है कि वो आपको वो डिसीजन मेकिंग दे जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं है और वो आपको इतना एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, केसेस के ऊपर एंड ऑफ कोर्स आपकी डेटा सेट ट्रेनिंग के ऊपर कि आपको वो आपको इनसाइट्स दें। डिफिकल्ट डायग्नोसिस जो मुझे लगते हैं उसमें एक फ्रैक्चर डायग्नोसिस है। तो हाउ डू यू थिंक फ्रैक्चर डायग्नोसिस इसमें रिलायबल है एज कंपेयर टू योर ओन डायग्नोसिस, क्योंकि सीबीसीटी इज द आइडियल एंड गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर दैट। अभी इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि हमारे एक डेंटिस्ट ने सॉफ्टवेयर दे यूजिंग इट, तो अल्टीमेटली उन्होंने सारा किया, उन्होंने कहा दिस इज समथिंग जो कि मैंने किया है, एंड उन्होंने सॉफ्टवेयर में देखा तो सॉफ्टवेयर ने उनको वैसी वो वाली केरीज लीजन्स आइडेंटिफाई करके दिखा दी विच वाज एक्चुअली एग्जिस्टिंग, बट उनको वो नजर नहीं आए। तो उनका ओह अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, सो फॉर द फ्रैक्चर्स या फॉर एनी अदर इंस्टेंसेस जहाँ पे पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर कि आपके वी हैव टू डील विद अ लॉट जस्ट टू क्रॉस चेक योर ओन डायग्नोसिस। एब्सोल्युटली। एंड इट्स सो मच इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि ह्यूमन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वजह से देयर आर फ्लक्चुएशन, you're overworked, you have your emotional tensions and of course your emotional moods, so ultimately वो बहुत सारी चीज़ें आपकी decision making को enable करता है। AI is not emotionally that much dependent, it's always going to give you a logical, that is the difference. It's always going to give you a logical, practical answer which you can choose कि what works है। अब इसके अंदर वही वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं कह दूं कि पेशेंट सेंट्रिक एक ट्रीटमेंट अप्रोच होती है, एक आइडियल ट्रीटमेंट अप्रोच होती है, सो अल्टीमेटली यू आर इन द कंट्रोलर ना। आप पेशेंट को देख के आपको रियलाइज हो रहा है अच्छा ये ट्रीटमेंट इसके लिए वर्क करेगा या नहीं, इसने मुझे ये प्रपोज किया है बट ये इसके लिए वर्क करेगा नहीं, इट्स इन योर हैंड। अल्टीमेटली मैंने वही कहा था कि इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, इट्स गोइंग टू help you and assist you. Let's come to the most important question now. What is the pricing model for the software AI Identify? अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत निगोशिएशंस हुई थी हमारी, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हम लोग एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर डेफिनेटली आ गए। सो वी हैव सर्टेन प्राइस सेट्स जो कि हम लोगों के पास हैं। अगर उन्होंने पेरिएपिकल्स फॉर $2 एंड ओपीजी अगर $4 है, सो वी आर एक्चुअली अच्छा एक्स-रे वाइज है, या इट्स एक्स्ट्रा, बट अल्टीमेटली अगेन इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि वी आर करेंटली आवर टीम इज एक्टिवली वर्किंग ऑन द ऑफर्स जो कि आप लोग इट्स एक्चुअली फीजिबल फॉर यू ताकि आप उसको इम्प्लॉय कर सकें अल्टीमेटली। सो again that is currently in process, and believe me there are exciting opportunities and exciting offers which are in the pipeline, and soon they will be released and you guys will definitely be able to use that. So just hang in there. It's a bit surprise kind of a tangent because हम इसको जितना बहुत कोशिश कर रहे हैं कि it's more accessible and feasible for people to apply that. हम इसको और further playing with the strategy and playing with a lot of things कि और कम हो जाए with exciting offers कि आप पहले फ्री में यूज करें सॉफ्टवेयर, थोड़ा पता तो चले तो ये भी आपके लिए so you are giving
giving free demos. या शुरू में तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स, great. आई मीन ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ ले लें, आपके क्यों नहीं, अल्टीमेटली आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये वो कैसे करेंगे, बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, सो अल्टीमेटली जो सेंसिटाइजेशन है वो तभी होगी जब हम उनको पहले तो फ्री डेमो के लिए किससे कांटेक्ट कर सकते आप हैं? हमें रीच आउट करें, हम आपके सारे मसले रिजॉल्व करेंगे। डॉक्टर नरमीन अजहर को इट्स ऑलवेज देयर, सो जस्ट रीच आउट टू आइडेंटिफाई, वी आर देयर टू हेल्प यू गाइस, एंड ऑफ कोर्स वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद फ्री टाइम पीरियड कि आप इसको एक्सप्लोर करें, लर्न करें, एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद विद एवरी पैकेज आप उसको एक्सप्लोर करें, एंड ऑफ कोर्स यू कैन एक्चुअली देन ऑफ कोर्स फिर आप उसको हम चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। पहले आप अच्छे से इसको फ्री एंजॉय करें अच्छे से, सो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइम। आप डॉक्टर इमरान प्रोमो दे सकते हैं? Sure, I won't mind. Definitely go. We can do that. चलें, that's great. Thank you so much, Dr. Naveen, for having us on show. ये चाहता रोल रिवर्सल। Thank you so much, Dr. Naveen, for coming. बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखने को मिला। आई गेस जो भी फेलो डेंटिस्ट सुन रहे होंगे हमें, उनके लिए बहुत एक न्यू इनोवेशन होगी और दे वुड हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, और इसके थ्रू अगर उनको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो ये आपको रीच आउट करें और यूज़ करें, एटलीस्ट गेट अ फ्री डेमो वंस, और देखें क्या है और क्या इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। इट साउंड्स ग्रेट एंड आई वुड रियली वांट टू अप्रिशिएट एट द एंड आपको एंड आपकी सारी टीम को, दैट इज़ वर्किंग रियली हार्ड एट दिस यंग एज, स्पेशली अभी बिल्कुल आप न्यू बॉर्न डेंटिस्ट हैं लेकिन फिर भी यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, और आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब ऑलरेडी एंड आई विश लॉट ऑफ सक्सेस फॉर दिस प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन। Thank you so much for having me on board. It's an absolute pleasure to be here. Thank you so much. I am attaching their link below. You can follow them on Instagram and other social media platforms by the name of AI Dentify, and give them a chance and work with them and explore them what they are doing.